Assalamu alaikum. Today the topic which we are going to discuss is reactivity and reactions of alkenes. If you have not subscribed my channel, please subscribe it. First of all, we will discuss the content. Number one, we will discuss reactivity and the types of reactions. And you know that there are three types of reactions which are given by the alkenes, which are addition reactions, oxidation reactions, and polymerization. In these slides, we will discuss reactivity and the types of reactions along with examples. First of all, talking about the reactivity, alkenes are unsaturated hydrocarbons. The valency of carbon atom is satisfied through double bond with other carbon atoms. And the bond which is formed due to the head-to-head overlapping on nuclear axis is called sigma bond, while the other bond which is formed due to the side-wise overlapping of orbital is pi bond. Simple सी बात है. अल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो कि अनसेचुरेटेड है. अनसेचुरेटेड हियर मींस के कार्बन और कार्बन के दरमियान कहीं पे कोई डबल बॉन्ड मौजूद होगा. इन डबल बॉन्ड्स में से जो फर्स्ट वाला बॉन्ड बनता है ड्यू टू द हेड ऑन ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऐसे बॉन्ड को हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं. While the remaining bond, which is formed due to the side-wise overlapping of orbital, is called pi bond. It means कि डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड आपके पास सिग्मा बॉन्ड है जबकि दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड है. सिग्मा बॉन्ड के ऊपर तो न्यूक्लियस का होल्ड होता है, बट पाई इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि न्यूक्लियर के इतने रेंज में नहीं होते, न्यूक्लियस का होल्ड कम होता है. इट मीन्स कि इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कोई रिएक्टिंग स्पीशीज अटैक कर सकती हैं. Nucleus has hold on its sigma electrons but less hold on pi electrons. So pi electrons are easily attacked by other species very easily. That's why we can say that alkenes are most reactive hydrocarbons. Moving toward the types of reactions. First of all, addition reactions. Number two, oxidation reactions. And number third will be polymerization. First of all, addition reaction. In these slides, we will discuss the types of addition reactions also, which will be hydrogenation, addition of hydrogen halides, addition of sulfuric acid, halogenation, and addition of hypohalous acid. First of all, hydrogenation. As the name is indicating, addition of hydrogen. किसके ऊपर hydrogen की addition करनी है? Alkenes के ऊपर. Unsaturated compounds ही एडिशन के रिएक्शंस देते हैं. सो ये रिएक्शंस भी क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो थोड़े से स्लो होते हैं एज कंपेयर टू अदर पोलर. सो दैट्स व्हाई हम हर रिएक्शंस में तकरीबन देखेंगे यूज ऑफ कैटलिस्ट एंड सम कंडीशंस. सो हाइड्रोजनेशन के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट जो कंडीशंस हैं वो है यूज ऑफ निकल कैटलिस्ट along with the temperature 200 to 300 degrees Celsius. Take the example of propene because it contains 3 carbons and double bond is present, so we will use the name propene. When H2 is a hydrogen molecule or 2 atoms of hydrogen. When H2 is added on propene, propene converts into propane. सेंटर वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन जाके ऐड हुआ और टर्मिनल वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन जाके ऐड हुआ और हमारे पास प्रोपीन किसके अंदर किस में कन्वर्ट हो चुका है? प्रोपेन में. दैट वाज ऑल अबाउट हाइड्रोजनेशन. हाइड्रोजनेशन का सिंपल यही मतलब था कि हाइड्रोजन को हमने ऐड करना है, डबल बॉन्ड को कन्वर्ट कर देना है सिंगल बॉन्ड में. नेक्स्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड्स. एज द नेम इज इंडिकेटिंग, हाइड्रोजन हेलाइड्स HX. These X can be fluorine, chlorine, bromine, iodine. लेकिन जो सबसे ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं वो क्लोरीन या फिर ब्रोमीन. फ्लोरीन को ज्यादा इसलिए नहीं यूज करते ड्यू टू इट्स वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू और ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल साइज फ्लोरीन का रिएक्शन बहुत विगोरस हो जाता है, जबकि आयोडीन अपने लार्ज साइज की वजह से थोड़ा लीस्ट रिएक्टिव होता है. इसलिए जो सबसे अच्छा हेलोजिनेटिंग एजेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं दैट इज ब्रोमीन और क्लोरीन. आज के इस रिएक्शन में हमने ब्रोमिनेशन करनी है या हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ऐड करना है प्रोपीन के अंदर. यहाँ पे क्योंकि हमने आज अल्कीन लिया है वो अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे जब हमने
अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन करनी हो तो एक रूल को फॉलो करते हैं, दैट इज मार्कोनिकव्स रूल. अकॉर्डिंग टू दैट रूल, द नेगेटिव पार्ट of the reacting substance will add to that carbon which contain least number of hydrogen atom. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ब्लैक शेडेड इसको कर दिया है. ब्रोमो ग्रुप को भी ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है, जबकि सेंट्रल कार्बन और हाइड्रोजन को मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया. क्यों? क्योंकि ये जो सेंट्रल कार्बन है इट कंटेन ओनली वन हाइड्रोजन, जबकि जो टर्मिनल पे कार्बन है इट कंटेन टू हाइड्रोजन. इट मींस द सेंट्रल वन विल add bromo group. Negative part will add to that carbon which contain least number of hydrogen atoms. So आपके पास preparation हो गई 2 bromo propane की. Alkenes are converted into alkyl halides. Number 3, addition of sulfuric acid. The formula of sulfuric acid is H2SO4. यहाँ पे हम इसको जरा ionized form में लिखेंगे HOSO3H. यहां पे मतलब इसका यही है H2SO4. H2SO4 की एडिशन हमने बिल्कुल सिंपल वे में करनी है. देखिए हाइड्रोजन को मैंने व्हाइट कलर से रिप्रेजेंट किया, जबकि HSO4 के ग्रुप को मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया. इट मींस के एक कार्बन एटम पे हाइड्रोजन की एडिशन है, जबकि दूसरे कार्बन एटम पे इस रिमेनिंग पूरे ग्रुप की एडिशन है. और आपके पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनती है. पहले ये CH2 था और ये बन गया CH3. नेक्स्ट डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड और CH2 के ऊपर पूरे के पूरे HSO4 ग्रुप की एडिशन हो चुकी है. इट मींस H2SO4 adds as hydrogen add on one atom while HSO4 adds on other atom. Next, moving toward halogenation. अल्कीन्स के ऊपर जब हमने हेलोजिनेशन करनी हो तो ये मोर देन वन स्टेप में है, तो इट मींस कि इसके लिए कोई मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है. कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व है? फॉर एग्जांपल इथीन को हम ट्रीट करने जा रहे हैं ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के साथ या 2 एटम्स ऑफ ब्रोमीन के साथ. ठीक, यहाँ पे हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एक ब्रोमो ग्रुप ऐड होता है और इस रिजल्टेंट आयन जब Br के ऊपर प्लस का चार्ज हो इसको हम ब्रोमोनियम आयन बोलते हैं. क्योंकि ये आपके पास एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुका है, ब्रोमो ग्रुप ने एट अ टाइम 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, ये अनस्टेबल है. इट हैज टू मूव टुवर्ड्स स्टेबिलिटी. बैक साइड से ब्रोमाइड ग्रुप अटैक करता है किसी भी एक कार्बन के ऊपर और आपके पास क्या प्रोडक्ट बन जाती है? सॉरी, यहाँ पे CH2 और हर कार्बन के ऊपर एक एक ब्रोमो ग्रुप है. यू हैव सीन दैट इथीन is converted into 1,2-dibromoethane. Next, addition of hypohalous acid. Hypohalous, it means between hydrogen and halogen there is oxygen. So we are using the word hypohalous. While the addition of hypohalous acid to alkenes, first of all you should make ions OH negative and X is separately added to carbon. एक कार्बन पे X की एडिशन करनी है जबकि दूसरे कार्बन पे OH की एडिशन करनी है. In this way, alkenes can be converted into halohydrins. Next, second category की reactions है हमारे पास oxidation reactions. In oxidation reactions, there are addition of oxygen, hydroxylation, combustion, or ozonolysis. First of all, addition of oxygen. While in the addition of oxygen, epoxide formation take place. अगर हम इथीन पे हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ऐड करते हैं, हाफ मॉलिक्यूल मींस एक एटम को ऐड करते हैं, आपने यहाँ पे देखा कार्बन कार्बन ऑक्सीजन का एक साइकिल बन चुका है. इसको हम बोलते हैं इथाइलिन एपॉक्साइड और यहाँ पे अगर 3 कार्बन होते प्रोपाइलिन एपॉक्साइड. इट मींस व्हेन इथीन अंडरगो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड एंड 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एपॉक्साइड फॉर्मेशन टेक प्लेस. नेक्स्ट, हाइड्रोक्सिलेशन. नाम से पता चल रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का कहीं पे ऐड होना. हाइड्रोक्सिल आयंस हमें कहां से मिलते हैं? विद द हेल्प ऑफ बेयर्स रिएजेंट. What is Beer's reagent? Actually, when we treat 1% alkaline KMnO4 with water in cold temperature, actually polyhydroxy compounds formation take place.
यहाँ पे देखें इथीन को जब हमने KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड लो टेम्परेचर, hydroxyl groups are added to both of the carbon atoms of ethene. क्योंकि दोनों नेबरिंग कार्बन्स पे दो OH हाइड्रोक्सी ग्रुप आ चुके हैं, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं ग्लाइकोल। और अगर आपके पास ये कार्बन चेन 3 कार्बन्स की होती और तीनों कार्बन्स पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते तो उसको बोलना था हमने ग्लिसरॉल। In simple words, we can say that polyhydroxy compounds formation take place, एक से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप किसी चेन पे लगे हों तो ऐसे कंपाउंड को हम पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड बोलते हैं। Next, ozonolysis. Ozonolysis, breakdown due to the presence of ozone. What is the formula of ozone? सबसे पहले ये पता होना चाहिए O3. सॉरी यहाँ पे O3 है आपके पास, ठीक। इथीन पे जब O3 की एडिशन करते हैं, इथीन कन्वर्ट हो जाता है मोलोजोनाइड में। सिंपल यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, O3 की एडिशन हुई है। लेकिन क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर बन चुका है, यहाँ पे ये थोड़ा अनस्टेबल मोलोजोनाइड है, रीअरेंजमेंट होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है ओजोनॉइड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओजोन का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो चुका है, 2 एटम्स ओजोन के एक साइड पे हैं और एक एटम ओजोन का सेपरेट आउट हो चुका है। इट मींस इथीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ओजोनाइड by the process of ozonolysis. Ethene is treated with ozone O3, here O3. Next, last reactions are polymerization. Polymerization actually means the combination of small monomers, छोटे छोटे monomers, छोटे छोटे molecules मिलकर एक larger molecule बनाते हैं under certain conditions। ऐसे process को हम polymerization कहते हैं। What are the conditions of polymerization here? High temperature, high pressure, and the use of catalyst. N number of ethene molecules reunite and they form polyethene. And this polyethene can be used for the preparation of toys, plastics, etc., etc. Thank you.